there are only two goats. One which is spiritual, and second the judges. Because most of the grievances and the problems and difficulties which is faced by the human beings on this planet, it is resolved, it is sorted out by the judges only. So it's my great opportunity. And second thing, this today is the day of World Day of Social Justice, and it is the Department of Law, the legal, the Faculty of the Legal Study, they are organizing this ceremony. So I just want to give some brief introduction regarding this day, because we are having the students from the different streams, faculty. So the United Nations World Day of the Social Justice is annually observed on this 20th Feb, and it encourages to look how to social justice affects the poverty. It also focus on the goals of the achieving of the full employment and support to the social integration. The social justice is the view that everyone deserves equal economic, political and social rights and opportunity. Social workers aims to open the doors to access and opportunity for everyone, particularly these in the greatest need. Social justice promotes the fairness and equality across many aspects of the society. For example, it promotes the equal economic, educational and the workplace opportunity. It is also important to the safety and the security of the individual and the community. Today is the day of for the social justice, and I am very proud to announce you we having a newspaper cutting. So I request our IT section please show on the screens. So it's a really very inspirational, because I gone through this news which was published in this very popular newspaper, the Bhaskar, Mansoor Bhaskar, regarding this the JMFC. They are talking about our sir, okay, and High Court के बाद Supreme Court ने भी कहा. The one case is pending before the Supreme Court, and it is regarding the, I think, the section 156(3), sir, if it is I am right, sir. The same situation, the same news every day I am also getting across in this Chittor district and the Bhilwara district, because there is a mining area, and most of the people, they are illegally indulged in this activity. So it's a very informative news, and so I request you, all of you please, I just give you the brief knowledge regarding this case. जो बजरी जो होती है, are you aware about this बजरी, मिट्टी, उसकी जो इलीगल माइनिंग होती है, उसके ट्रांसपोर्टेशन में जो अवैध बजरी का जो कम्युनिटी जो इसमें इन्वॉल्व है, तो पहले क्या होता था कि जो भी उसके अंदर उसको ट्रेस आउट करते थे पुलिस, राइट, तो उसके अंदर मतलब उनकी जो रॉयल्टी का जितना अमाउंट था, वो रॉयल्टी वो अगर पे कर देते थे तो वो केस उसको डाइल्यूट कर देते, डाइल्यूट हो जाता था, और फिर उसमें कोई भी उनकी पेनल्टी नहीं लगती. लेकिन सर ने इनिशिएटिव लिया और इस चीज के खिलाफ अपील की सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट ने उस हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट के जो जजमेंट था उसको विदहेल्ड किया. आई थिंक सर इट इज, if I am not wrong, sir. So yeah, so he will also give the focus on this case, very popular case. So I will not take much time, and I request our the civil judge Sameer sir, please come on this dais and share some the practical case, which is very benefit and useful for our students also. So please sir. प्रणाम करते हुए मैं इस सभागार में उपस्थित आदरणीय वीसी सर, फैकल्टी मेंबर्स, स्टूडेंट्स और जो विभिन्न डिग्नेटरीज हैं उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं. वीसी सर का विशेष अभिनंदन करता हूं कि आप सभी से मुखातिब होने का अवसर दिया
स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, आप जरूर पढ़िएगा इसको। उसमें और भी जो कॉग्निजेंस पर भी बात हुई है, 156(3) पर भी बात हुई है, मस्टेड पेपर की कटिंग पर भी कार्रवाई कर सकता है, इस पर भी बात हुई है, और माइनिंग लॉस पर भी बात हुई है, और ये लॉ ऑफ द लैंड हो गया है, मतलब आपके राजस्थान में भी वो इक्वली एप्लीकेबल है। अब आप कहेंगे कि साहब आप तो मस्टेड थे, आपने कर दिया, कैसे कर दिया? मेरे कुछ वकील मित्र हैं जो मेरे साथ लॉ करते थे, उनने पूछा कि यार तुम मस्टेड हो, तुमने इतने झंडे गाड़ दिए, हम वकील होते तो ऐसा कुछ नहीं कर पाते। तो मैंने कहा कि मैं लॉ स्टूडेंट होता ना तब भी ऐसा कर लेता अगर मैं सोच लेता। कैसे कर लेता वो सुनिए। ऐसे कर लेता, हालांकि अपना रिस्क है, मस्टेड के रूप में भी मेरे हिस्से का रिस्क था, काउंसिल के रूप में या लॉ स्टूडेंट के रूप में या किसी भी संवेदनशील नागरिक के रूप में अपने अपने रिस्क हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? बहुत आसान है। मैंने एक मस्टेड की हैसियत में ऑर्डर किया कि तुम रिकॉर्ड्स लेके आओ, बताओ मुझे कि क्या तुमने कंपाउंड करके ही छोड़ दिया कि एफआईआर भी दर्ज कराई। मुझे मिल गया। अब लेमैन क्या करे? आपके पास आरटीआई है, सूचना का अधिकार अधिनियम, किसी भी डिपार्टमेंट में आप जाके उनका जानकारी आप मांग सकते हैं और नॉमिनल चार्जेस लगते हैं उसके। आप मांगिए। पिछले 2020 में जितने खनिज हैं, रेत ही नहीं, जितने भी खनिज हैं आपके यहाँ राजस्थान में तो भंडार है खनिज का, आप गिनाते गिनाते थक जाएंगे। तो जितने भी खनिज हैं उनके अवैध उत्खनन, परिवहन और भंडारण की आप जानकारी दीजिए, किसके विरुद्ध क्या कार्रवाई की। यहां भी कंपाउंडिंग करके ही छूट रहे हैं लोग। आप जो आरटीआई में कॉपी हासिल करेंगे वो एविडेंटरी वैल्यूज की होती है। आप पुलिस के पास जाइए कि साहब ये वर्डिक्ट है जयंत वाली, लॉ ऑफ द लैंड है, आप इसमें एफआईआर दर्ज करिए 379, 414 आईपीसी और 4/21 खान खनिज अधिनियम 1957 और जो आपके राजस्थान के जो रूल्स हैं उसमें। वो नहीं करता है 154(3) में जाइए, पुलिस कप्तान के पास जाइए, रजिस्टर्ड डाक से भेजिए। वो नहीं करता है तो 156(3) में आइए मजिस्ट्रेट के पास। मजिस्ट्रेट के लिए मैंडेटरी होगा कि मजिस्ट्रेट उसमें आदेश करे और एफआईआर दर्ज हो। इसलिए आपसे मतलब मेरा यही कि कोई भी ये काम कर सकता है। मैंने कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया है। जब आप सोशल जस्टिस की बात करिए तो आप उस हर वर्ग की चिंता करिए और आप ये मानिए कि इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो डिफेंस। इस बात से ये सभी पर एप्लीकेबल है। और अवसर मत खोइए। आप जहां भी हैं, जब भी आपको अवसर मिले कुछ अच्छा करने का अपने लेवल पे तो जरूर करिए। क्यों? क्योंकि बाद में कोई अर्थ नहीं रहेगा जब आप अपनी जिम्मेदारियों में आ जाएंगे। आपके जब ब्रेड बटर की बात होगी कि भाई अब रोटी की व्यवस्था करें, तो उसके साथ ऐसा कुछ करना बड़ा मुश्किल होगा। तो अपना प्रोफेशनलिज्म जो है उसके साथ पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई करने के साथ अपनी संवेदना को जीवित रखिए, नहीं तो फिर कोई अर्थ नहीं होगा। और इसी पर मैं रामधारी सिंह दिनकर की कुछ पंक्तियों के साथ बात खत्म करूंगा। नित्य जीवन के संघर्षों से जब टूट चुका हो अंतर्मन, तब सुख के मिले समंदर का रह जाता कोई अर्थ नहीं। जब फसल सूख कर जल के बिन तिनका तिनका बन गिर जाए, फिर होने वाली वर्षा का रह जाता कोई अर्थ नहीं। संबंध कोई भी हो, लेकिन यदि दुख में साथ न दे अपना, फिर सुख में उन संबंधों का रह जाता कोई अर्थ नहीं। मन कटुवाणी से आहत हो, भीतर तक छलनी हो जाए। मन कटुवाणी से आहत हो, भीतर तक छलनी हो जाए, फिर बाल कहे प्रिय वचनों का रह जाता कोई अर्थ नहीं। सुख साधन चाहे जितने हो, सुख साधन चाहे जितने हो, पर काया रोगों का घर हो, फिर उन अनगिनत सुविधाओं का रह जाता कोई अर्थ नहीं। इसलिए सही समय पर जागिए और संवेदना अपनी जीवित रखिए। जहां भी हैं अच्छा करिए, तब सोशल जस्टिस सही मायने में चरितार्थ होगा। मैं बस बच्चन साहब के, हरिवंश राय बच्चन की कुछ और पंक्तियों के साथ युवा साथी बैठे हैं, इसलिए मैं जरूर कहूंगा, हर फोरम पे कहता हूं, आप जब भी संगम जाएंगे, सिक्का डालता है वहां खड़ा व्यक्ति और छोटे छोटे बच्चे डुबकी लगाते हैं और सिक्का लेके आते हैं। और बीसी साहब ने जरूर देखा होगा इसको। आप जबलपुर भी जाएंगे तो आप देखेंगे कई नदियों पर जहां ऐसा है तो छोटे छोटे बच्चे गोता लगाते हैं और लेके आते हैं। उस पर बच्चन साहब ने बड़ी 4 अच्छी पंक्तियां लिखी हैं। इसी पंक्तियों के साथ मैं अपनी बात खत्म करूंगा। डुबकी गोताखोर गंगा में लगाता है, डुबकी गोताखोर गंगा में लगाता है, जा जाकर खाली हाथ वापस लौट आता है। कई बार जब उसकी सांस छूटने लगती है तो वो सिक्का लिए बिना वापस लौट आता है। फिर लेकिन
एनर्जी के साथ जाता है कि मैं सिक्का लेकर लौटूंगा। डुबकी गोताखोर गंगा में लगाता है, जा जाकर खाली हाथ वापस लौट आता है। मिलते न सिक्के उसे गहरे पानी में, मिलते न सिक्के उसे गहरे पानी में, बढ़ता दुगना उत्साह उसका इसी हैरानी में। हैरान भी होता है लेकिन दुगने उत्साह के साथ वो फिर जाता है। मिलते न सिक्के उसे गहरे पानी में, बढ़ता दुगना उत्साह उसका इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, क्योंकि मेरे दोस्त कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती, क्योंकि मेरे दोस्त कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जय हिंद। I would like to request our civil judge senior Vaishwari ma'am, please come on the dais. थैंक यू सो मच। मेरे बीच में आज एक्चुअली स्टूडेंट हैं इतने सारे, तो लीगल डिस्कशन या लीगल अवेयरनेस तो इन्होंने काफ़ी दे दी। मैं आपको देखते हुए कुछ अभी तक के अपने एक्सपीरियंस से कुछ कहना चाहूँगी। आपका एक्चुअली मैंने ये लोगो देखा, लोगो में लिखा हुआ है नीचे नॉलेज टू विजडम। इसको पकड़ के चलिए तो आप कभी भी फेल्योर की तरफ नहीं जाएंगे। नॉलेज से आपको कहाँ जाना है? विजडम। और लोग आजकल केवल नॉलेज पे ही रह जाते हैं, बस मुझे पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है, अच्छी रैंक लानी है, टॉप करना है, 99%, 98%, और ये विजडम तो हम भूल ही जाते हैं कि ये 98% अटेंड करने के लिए तो एक्चुअल में अचीव आप विजडम करिए। अगर आपने विजडम अचीव कर ली तो आप जहां भी रहेंगे सक्सेसफुल रहेंगे। आप अपने आप को कंपेयर खुद से करिए, दूसरों से मत करिए। हमारे अंदर आज हम देखते हैं कि 10th क्लास में बच्चा थोड़े से कम मार्क्स आया तो सुसाइड कर लिया। थोड़े से कम मार्क्स आके अपने आप को ऐसा मत समझिए कि आपने अपने आप को ख़त्म कर लिया, क्योंकि स्टिल आप जिंदा हैं। एक 10th का स्कोर या 12th का स्कोर, या मैं जज नहीं बन पाया, या मैं IAS नहीं बन पाया, या मैं डॉक्टर नहीं बन पाया, या मैं इंजीनियर नहीं बन पाया, तो आप अपने आप को फेल समझने लगे और अपनी लाइफ को ख़त्म करने की दिशा में आगे बढ़ जाए। आपको विजडम अचीव करनी है, नॉलेज अचीव नहीं करनी है। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, हमको बुलाया, इतना आपने सम्मान दिया, बहुत बहुत थैंक यू। Deshna Jain ma'am, please come on this dais. थैंक यू सो मच सर। आज सोशल जस्टिस डे है। वी आर अ सोशलिस्ट कंट्री, वी आर अ वेलफेयर स्टेट। The word socialism, the socialist, was added to preamble via 42nd amendment. Why do we need to be a socialist country? हमें social justice क्यों चाहिए? Because there is social gap. सर ने एक टर्म यूज किया था संवेदनशीलता। Social justice, social gap. there is nothing much we can do about it except being sensitive. संवेदनशील होने के अलावा हम कुछ नहीं कर सकते हैं। संवेदनशील, sensitive to person who are less resourceful than you are. मुकेश अंबानी भी हैं यहाँ पे और बहुत गरीब लोग भी हैं जिनको खाने के लिए तरसना पड़ता है। तो जब हम when we are in a position when we can help others who are less resourceful than us, then do not miss out on that opportunity, because social justice अगर हम ठीक है, सरकार तो कर ही रही है, सरकार तो है ही वेलफेयर स्टेट, हम है ही सोशलिस्ट कंट्री, बट व्हाट वी कैन डू बाय आवरसेल्व्स। एक दूसरी चीज और मैं बोलना चाहूंगी कि ये जो सर ने कॉग्निजेंस लिया था दैट रीच्ड अप टू सुप्रीम कोर्ट और बहुत बड़ा वो हो गया, इसमें किसी भी सक्सेस के पीछे या किसी भी बड़ी चीज के पीछे एक मेरे व्यू में जो एक बहुत बड़ा इंग्रेडिएंट होता है वो होता है करेज। मतलब अपॉर्चुनिटी, जैसे सर है मजिस्ट्रेट, बहुत लोग हैं पूरे, आप सोचे ना इंडिया में कितने मजिस्ट्रेट्स हैं, कितने लोगों ने किया। It was not like they didn't have the opportunity, and it was not like कि वो कभी ऐसी चीज उनके ज्ञान में नहीं आई होगी कि ये भी प्रोविजन है या ये कर सकते हैं। But what was the difference was courage. जब हम अगर आपके पास वो करेज है और कुछ इनिशिएटिव लेने की क्षमता है, तो नो मैटर इफ यू आर अ स्टूडेंट, इफ यू आर अ जज, इफ यू आर नोबडी, इफ यू आर रिच, आपके पास वो इतनी हिम्मत होनी चाहिए
तभी आप वो आगे बढ़ के वो चीज़ कर सकते हैं। एंड एक बस लास्ट चीज़ कि हाउ मेनी ऑफ यू आर एस्पायरिंग जजेस ओवर हियर हु आर प्लानिंग टू प्रिपेयर फॉर जुडिशरी? सो क्वाइट अ फ्यू। सो पहले से ही बोल देती हूँ, इट्स नॉट अ परफेक्ट इंस्टीट्यूशन एंड इट इज नॉट as profitable as prestigious as it sounds, but उसके अपने वो है। जब आप जाए तो मैं am a very new judge, एक दो साल ही हुए हैं। So अगर आप सोच रहे हैं कि आप जज बन के, मतलब मैंने देखा है कि बहुत लोग बन के कि यार मतलब उतना नहीं है जितना हमने सोचा था, हमने तो क्या क्या ख्वाब देखे थे ये वो करके। So अगर आप इंस्टीट्यूशन में जाना चाहते हैं, there is a lot of opportunity to do good for society, but उसके लिए आपको उतना डेडिकेटेड होना पड़ेगा एंड उतना नेसेसर है। जैसे मैम है यहाँ पे, मैं एक चीज़ है, मैं इनके पास में ही रहती हूँ घर के, और ये मैं जूनियर ही हूँ। मैंने बहुत कुछ सीखा है इनसे। एंड व्हेन यू फाइंड पीपल जो आपको इंस्पायर कर सके, डू टेक दैट इंस्पिरेशन एंड मूव फॉरवर्ड। तो अगर आप इंस्टीट्यूशन, जो मैं बात कंप्लीट करना चाह रही थी कि इफ यू वांट टू बी अ पार्ट ऑफ जुडिशरी, देन डोंट वांट टू बी अ पार्ट ऑफ इट बिकॉज इट्स प्रेस्टिजियस, बट यू डू वांट टू बी अ पार्ट ऑफ इट बिकॉज यू वांट टू चेंज इट। मुझे उसको उतना अच्छा बनाना है जितना प्रेस्टीज वो डिजर्व करती है। एंड अगर आप जैसे यंग लोग उतना थिंकिंग के साथ जुडिशरी में आएंगे, देन इट वुड बी अ ग्रेट थिंग फॉर ऑल ऑफ अस। थैंक यू। Now it is time. I would like to invite our Honorable VC Sir, Anand Vatan Shukla ji, for the vote of thanks. Thank you, sir. Respected Mishra sir, Mrs. Mishra, Ms. Jain, Deans, HODs, Professors, Students. मैं कुछ एग्जाम्पल देना चाहूंगा उसी कंटिन्यूएशन में जिसमें कि मिस मिश्रा ने बात कही थी कि संवेदनशीलता क्या है। वर्ल्ड रिलीजियस स्पिरिचुअल कॉन्फ्रेंस में मैं कलकत्ता गया था बिफोर लास्ट ईयर, और मुझे कहा गया कि स्पिरिचुअलिज्म क्या है, व्हाट इज स्पिरिचुअलिज्म एंड व्हाट इज रिलीजन, दोनों में क्या संबंध है, क्या फर्क है, क्या अर्थ है। मैं रिलीजियस हूं अगर मैं पांचों वक्त की नमाज पढ़ता हूं, मैं रिलीजियस हूं अगर मैं त्रिसंध्या करता हूं और संडे के क्रिश्चियन में मास में जाता हूं और गुरुद्वारे में जाता हूं और अखंड साहब का पाठ पढ़ता हूं, मैं रिलीजियस हूं। लेकिन अगर मेरे पड़ोस में कोई भूखा सो रहा है तो मैं स्पिरिचुअल नहीं हूं, रिलीजियस तो हो सकता हूं। देखो, आप में से जो लॉ वाले हैं वो जानते हैं, जो इंजीनियरिंग वाले, फिजिक्स वाले इंजीनियर और वो दूसरे लोग नहीं जानते होंगे। 156(3) क्या है बेटे? क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जो है, दंड प्रक्रिया संहिता, 3 ही मेजर एक्ट है इंडिया के, आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट। माइनर तो सैकड़ों और बड़े बड़े हैं। तो इन तीनों एक्ट से ही हमारा कानून चलता है। बाकी कानून को सपोर्ट करने के लिए छोटे छोटे, मैं समझता हूं माइनर तो 1000 एक्ट होंगे। 1000 भी मैं कम बता रहा हूं, शायद और भी ज्यादा होंगे। सर, थैंक यू वेरी मच समीर सर, वी आर डिलाइटेड। थैंक यू मैडम मिश्रा, मिस जैन, थैंक्स फ्रॉम कोर ऑफ हार्ट फ्रॉम मेवाड़ यूनिवर्सिटी। जय हिंद, जय भारत। फिर से आइएगा सर।